हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, इसमें फर्स्ट मेथड है एरो डायग्राम। इन दिस मेथड corresponding related elements of set A and set B are connected by arrows. For example, मानो मेरे पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है। सेकंड सेट B है, उसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। F is a function from set A to set B. F is a function from set A to set B such that F is equal to function F is equal to 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. These are the elements or order pairs of the function f. ये जो फंक्शन है ये हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में दिखाया है। इसे हमें एरो डायग्राम से हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मानो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेट ए, सेट बी। F is a function from set A to set B. 1 is related with 2. 1 is related with 2. 2 is related with 4. 3 is related with 6. 4 is related with 8. This type of representation is called arrow diagram. This type of representation is called arrow diagram. Arrow diagram में corresponding related elements of set A and set B are connected by arrows. तो हम उसे arrow diagram कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में सेकंड मेथड स्टेटिंग द रूल are in term of formula. In this method we state domain, codomain and the rule under which correspondence is to be established. इस मेथड में फंक्शन किस रूल से इस्टेब्लिश होता है और रूल मेंशन किया जाता है। तो हम इस मेथड को स्टेटिंग द रूल और इन टर्म ऑफ फॉर्मूला कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल a is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4. These are the elements of set A. B is equal to in curly bracket 2, 5, 10, 17, 26. These are the elements of set B. F is a function from set A to set B such that f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 5, f of 3 is equal to 10 and f of 4 is equal to 70
f is a function from set A to set B such that f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 5, f of 3 is equal to 10, f of 4 is equal to 70, f of 1 की वैल्यू 2 मिलती है, उसका मतलब f of 1 is equal to 2 means 1 square plus 1 करेंगे तो मुझे 2 मिलता है. f of 2 is equal to 5, that means f of 2 is equal to 5, that means 2 square plus 1 करेंगे तो मुझे 5 मिलता है. f of 3 is equal to 10 है, f of 3 is equal to 10 means 3 square plus 1 is equal to 10. f of 4 is equal to 70, that means 4 square plus 1 is equal to 70. From this, it is clear that f of x is equal to x square plus 1. f of x is equal to x square plus 1. f of x is equal to x square plus 1. This type of representation is called stating the rule. इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम इन टर्म ऑफ फॉर्मूला कह सकते हैं या स्टेटिंग द रूल कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप देखेंगे. नेक्स्ट type of representation of function is function as a set of order pairs. In this method, the function is represented in the form of the set of order pairs. इस मेथड में हम फंक्शन ऑर्डर पेयर्स के फॉर्मेट में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, f is a function from set A to set B such that f of x is equal to 3x where A is equal to, in curly bracket, set A is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and set B is equal to, in curly bracket, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Therefore, function f is equal to f of x is equal to 3x. अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो f of x की वैल्यू 0 into 3 means 0 मिलेगी. तो 0, 0 is the first order pair. अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 into 3 मिलेगा. तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1, 3 रहेगा. अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2, 6 ऑर्डर पेयर मिलेगा. x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3, 9 ऑर्डर पेयर मिलेगा. x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4, 12 ऑर्डर पेयर मिलेगा. इस ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट कम्स फ्रॉम सेट A एंड सेकंड कंपोनेंट कम्स फ्रॉम सेट B. अगर आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां ये जो ऑर्डर पेयर्स है इसमें फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं है तो ये फंक्शन है. तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स. फंक्शन अगर ऑर्डर पेयर्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है तब उसे हम कहते हैं फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप्स.
Next types of representation, tabular form. If the set A and B are finite set, then function f is a function from set A to set B can be represented by a tabular form in which domain and range are written in two rows. मानो मेरे पास एक फंक्शन है, let f is a function from set A to set B such that f of x is equal to x plus 2, where x belongs to set A and A is equal to, in curly brackets, set A is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and set B is equal to, in curly bracket, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the elements of set B. Then tabular form of the function f of x is equal to x plus 2 हम tabular form में लिखेंगे तो फर्स्ट रो में डोमेन रहेगा एंड सेकंड रो में रेंज रहेगी. यहां x रहेगा, यहां f ऑफ x रहेगा. फर्स्ट रो में डोमेन एंड सेकंड रो में रेंज रहेगी. देखो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, 0 plus 2 means 2. Therefore order pair x, f of x मुझे मिलेगा 0, 2. अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 plus 2 means 3. ऑर्डर पेयर 1, 3 रहेगा. अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 plus 2 4 होगा. 2, 4 ऑर्डर पेयर होगा. अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 plus 2 means 5, तो ऑर्डर पेयर 3, 5 होगा. अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 plus 2 means 6 होगा. तो 4, 6 is the order pair. This type of representation is called tabular form. ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने tabular form में रिप्रेजेंट किया है, इसे हम tabular form कहते हैं. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ ऑफ फंक्शन. A geometrical representation of a function is called a graph of a function. फंक्शन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कहते हैं. लेट f is a function from set A to set B such that f of x is equal to x square, where x belongs to R means x is a real number. हम पहले ये जो फंक्शन है वो टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. मानो ये मेरा x फर्स्ट रो में डोमेन रहेगा, सेकंड रो में रेंज रहेगी, थर्ड रो में ऑर्डर पेयर्स रहेंगे. x, f of x, x, f of x. ओके, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो f of x is equal to 0 मिलेगा. मीन्स 0, 0 is the order pair. अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो
1 स्क्वायर मीन्स 1 मिलेगा, एफ ऑफ एक्स 1 मिलेगा। 1,1 इज द ऑर्डर पेयर। अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर 1 रहेगा। -1,1 इज द ऑर्डर पेयर। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू 4 रहेगी, तो 2,4 इज द ऑर्डर पेयर। अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू 4 ही रहेगी, -2,4 इज द ऑर्डर पेयर। These are the order pairs of the function. Okay? हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यहां जगह अवेलेबल करेंगे। देखो मानो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस ओरिजिन कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट 0,0 रहते हैं। y y डैश 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3. This is positive direction of x axis, negative direction of x axis, positive direction of y axis, negative direction of y axis. फर्स्ट पॉइंट 0,0 तो 0,0 यहां आएगा। सेकंड पॉइंट 1,1 था, 1,1 तो यहां आएगा। फिर हमने -1,1 तो यहां रहेगा। फिर हमने लिया था 2, तो x की वैल्यू 2 रहेगी, तो y की वैल्यू 4 रहेगी, यहां हम 4 लेंगे, थोड़ा आगे लिखते हैं। ओके 2,4 तो पॉइंट यहां पे आएगा। ओके -2 लेंगे तो भी 4 आया था, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। इसमें से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो यहां जगह अवेलेबल करेंगे। y ओके तो ग्राफ इसी तरह से ये पॉइंट ज्वाइन करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये मुझे ग्राफ मिलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x is equal to x square. This type of representation is called graphical representation of a function. इसी तरह से हम फंक्शन का ग्राफ निकाल सकते हैं और उसे कह सकते हैं इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।